So we are starting a new topic, that is mathematical tools. Mathematical tools. The exam won't ask a direct question from this section, but this portion is very important for other chapters like kinematics. जो भी आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, you will require mathematical tools to solve सर the ये हमारे question. पैकेज चैप्टर में First topic will be basic geometry. In basic geometry, we will cover screen visible to everyone. Visible है? Yes, sir. यस सर Line. First we will cover line, then we will cover ellipse, circle and parabola. सिर्फ उतना जितने में हमारा काम चल जाएगा फिजिक्स में. So this is geometry. Second one, trigonometry, basic trigonometry. Third one is log, and fourth one and most important one, calculus. Calculus will be having two parts. It will be having two parts: differentiation, and integration. Differentiation and integration. Okay, इसको note करो. So we are starting the first topic, that is the geometry. Basic geometry आपने you have learned in 10th, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे basic geometry. The first topic will be line equation. First is line equation. So what is line equation? कोई बता सकता है what is line equation? अच्छा, what is difference between a line and a curve? अगर आपको बोले which one is line and which one is curve? Which one is line and which one is curve? line and Line second second. First one is line, the first one is line and the second one is curve ना. ठीक है. Okay. तो line equation start करने से पहले basically हमें थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देखना है कि व्हाट इज द फंक्शन. सिर्फ इतने में ही बता दूंगा मैं. फंक्शन से आप क्या समझते हैं? सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन से क्या समझते हैं? कोई बता सकता है? व्हाट इज अ फंक्शन? बहुत सिंपल सा, कोई भी एक सिंपल सी लैंग्वेज. Function is a relation between two variable. Suppose your performance and your hard work is a function, है ना, कि आपका performance basically proportional to their hard work. कितना आप कर रहे हो, कितना आप पढ़ रहे हो, it will depend on your hard work, है ना, कितना आप उसमें पढ़ाई के टाइम पे. जैसे suppose y is equals to 3x है. So if you put the value of x, you will get the value of y. हाँ या ना? सही है कि नहीं? ठीक है? यस सर If you put the value of x, you will get the value of y. Suppose y is equals to x square minus 2x plus 3. Same way, if you put the value of x, you will get the value of y. हाँ या ना? And vice versa is also true. If you put the value of y, you will get the value of x. सही है कि नहीं? Clear है? तो फंक्शन बेसिकली मैथमेटिक्स में बहुत लंबा चौड़ा लिखा रहता है. फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन विच इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. समझ में आया कि नहीं? सपोज जैसे ट्रैफिक होता है, रोड ट्रैफिक. सो रोड ट्रैफिक इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ रोड ट्रैफिक, बहुत ही प्यारा सा ग्राफ आता है. अगर रोड ट्रैफिक का ट्रैफिक वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करोगे, देन ग्राफ विल बी सपोज एट 6 AM इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड देन एट द टाइम ऑफ ऑफिस टाइमिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा? सपोज 9 AM के टाइम पे द ग्राफ विल बी दिस, देन ग्राफ विल ड्रॉप अगेन, एंड देन ग्राफ विल अगेन गो
एट अराउंड 8 PM ऑफिस जब जब लोग निकलते हैं ऑफिस से, है ना. तो देखो दिस ट्रैफिक इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हाँ या ना, सही है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो इसी तरीके से पूरे यूनिवर्स में ऑल द प्रोसेस हैव ए फंक्शन. वो किसी ना किसी चीज का फंक्शन है. ठीक है, तो फंक्शन को बहुत ही एक बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ के आप सीधे समझिए कि फंक्शन इज एनी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन विच इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, So sir. line is also a function. Line is also a function. Y is equals to mx plus c is the standard line equation. ये 10th में पढ़ा है कभी? Y is equals to Yes, mx plus c. Yes. This is the standard line equation. अब क्या होता है लाइन इक्वेशन में? अब देखो यहाँ पे क्या होता है. पहले एक्सिस बना लेते हैं. फर्स्ट वी विल ड्रॉ द एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस. This is x-axis and upward is y-axis. X-axis and y-axis. So what is standard line equation? This is y is equals to mx plus c. In this, m is slope, and c is intercept. Point of intersection and y-axis. Y-intercept. Intercept. किस पे? y. ठीक है. So if you put x is equals to 0. If you put x is equals to 0 in this equation, you will get y is equals to c. हाँ, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आई गॉट डिस्कनेक्टेड. कहाँ से? y is equals to mx plus c के बाद कुछ भी नहीं किया हाँ है. सर. y is equals to mx plus c is a line equation. It is a function of y and x. है कि नहीं? If you put the value of x, you will get the value of y. Yes. Y is equals to mx plus c is a standard line equation in which m is slope and c is intercept. है ना? If you put the x is equals to 0, तो y कितना आएगा? c आएगा कि नहीं आएगा? देखो हाँ. आएगा ना? तो ठीक है. When you put, देखो सिंपल सा याद रखना. If you put x is equals to 0, you will come on y axis, and if you put y is equals to 0, you will come on x axis. X-axis. ठीक है, because on x axis y will be 0, on y axis x will be 0, है ना? So x is equals to 0, c, this one c, you will get one coordinate, that is 0 comma c, 0 comma c. And if you plot this line, if it is having the positive slope, it will get the shape y is equals to mx plus c. ठीक है, this is intercept, and what is slope? Slope is tan theta. Tan theta is m. Clear है कि नहीं? Is it clear? Sir, in ICSE we had a whole chapter in maths. It was called equation 19. Sir, but Yes, in sir. CBSE we did not have this. ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा है. ठीक है. But sir, CBSE में नहीं था sir. अच्छा CBSE But and I am SSC को considering नहीं that some people are from HSC, CBSE, other boards also. तो और प्लस आफ्टर 10th आपने 10th में आपने वैसे भी 10th का बोर्ड नहीं दिया है ना, तो मैं ज़्यादा आई कैंट रिलाई. ठीक है. सो बेसिकली लाइन इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी. ठीक है, ऑल्दो आपको आता है, आई बिलीव आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही मेहनत से आपने 10th पास किया है, लेकिन ठीक है, चलो Sir, परेशान मत होना. intercept क्या होता है? इंटरसेप्ट मतलब कि समथिंग इंटरसेप्टिंग एनी एक्सिस, है ना? दैट इज द इंटरसेप्ट, जहाँ पे वो मिलता है, टच करता है किसी चीज को. ठीक है, कट करता Sir, है. ये tan theta is equal to m क्या है? tan थीटा इज स्लोप बेटा. tan थीटा इज स्लोप. tan थीटा इज स्लोप. पहले इतना नोट कर लो. मतलब अगर स्लोप ढूंढना होगा तो हमें उसका एंगल का tan theta. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इतना नोट कर लें सब. दिस इज y एक्सिस, this is y axis, and this is x axis. Standard line equation is y is equals to mx plus c. mx plus c. C is y intercept. C is y intercept, and this is tan theta. This is the slope. Tan theta is equals to m. M is slope.
M is slope, and C is intercept. C is intercept. If you put value of x or you put value of y, you will get the value of other variable. Suppose if you are putting the value of x in this line, it will give the value of y, and if you are putting the value of y, you will get the value of x. Okay? So this is a function. This is a function of line equation, standard line equation. This is positive slope. This slope is positive. This slope is considered as positive slope. इसको positive बोलते हैं. This slope is 0. This is 0 slope because it is making angle कितना? This is making angle 0 degree ना? So this slope is positive, this slope is 0, and this slope is negative. This slope is negative. हाँ बेटा. So आप स्क्रीन पे लिख रहे हो अभी? हाँ, क्या नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा वो. किसी को भी नहीं दिख रहा है? सर आपका पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है. क्या दिख रहा है? सर अभी आया. नहीं, किसी को भी नहीं दिख अभी आया. चेक कर रहा है. सर अभी आया. सर मुझे तो क्लियर है सर काफी टाइम से. अच्छा क्लियर है? मुझे भी एकदम प्रॉपर क्लियर है. हाँ सर मुझे क्लियरली आ रहा है. इवन मुझे भी. सर मुझे भी क्लियर. So this is the line with negative slope. Negative slope कैसा दिखेगा, ठीक है? I am giving you some lines. हाँ बेटा बोलो. सर जो सी है सर उसको बस 0 से जहाँ पे भी वो है उधर तक ही उसका वैल्यू रहेगा ना. जहाँ पे भी it is cutting the y-axis, that will be C. Simple sir. ठीक है? Whether it is cutting the plus y-axis or minus y-axis, जहाँ पे भी it cuts the y-axis, this is the C. ओके सर. Y is equals to 3x plus 5. You have to plot this line. Second is y is equals to minus 6x plus 12. थोड़ा इसको इजी कर देते हैं ऊपर वाला 6. And third one is 3y is equals to 12x plus 18. 3 lines. You have to plot these 3 lines. पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ. y is equals to minus 8x plus 16. The first one. पहला वाला मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे. उसके बाद बाकी आप करोगे, ठीक है? तो पहला वाला बताएं, फर्स्ट वन. इसमें बताएं कैसे करेंगे. व्हाट विल बी द स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे. बहुत सिंपल से स्टेप्स रहेंगे. देखो कैसे करते हैं किसी भी लाइन को प्लॉट. y is equals to 3x plus c. If you put x is equals to 0, if you put x is equals to 0, you will get y is equals to 6. हाँ या ना. देखो इसमें हाँ सर. सबको क्लियर है. If you put x is equals to 0, you will get y is equals to 6. तो एक पॉइंट मिल गया x0 y6, x0 and y6. This is one point. Second point कैसे मिलेगा. Second point, put y is equals to 0. Put y is equals to 0. What you will get? Put y is equals to 0. If you put y is equals to 0, 3x plus 6, then x will be minus 2. X will be minus 2. सही है कि नहीं. क्लियर है सबको. यस सर. यस सर. So Sir, can I put any number instead of 0? कुछ भी रख सकते हो. You can put any number. For plotting a line, you just require 2 coordinate. आपको 2 coordinate अगर मिल गए, you will just join these 2 coordinate and you will get the line. ठीक है. But getting the axis point will be easy क्योंकि उसको ग्राफ में प्लॉट करना आसान होता है ना. आप ग्राफ पेपर के बगैर पॉइंट तो नहीं देख सकते, but you can see the axis. Axis आपको दिख जाएगा. x minus 2 and y0. This point will be minus 2 comma 0. सही है कि नहीं. Is it clear with you? So this will be the line passing from these मतलब बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग करने का इस फॉर्मूला के साथ बस. बिल्कुल बेसिक ग्राफ. ओके क्लियर है. सर
इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सर? नेगेटिव होगा ना? If you compare this with y is equals to mx plus c, नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा. mx plus c से अगर if you compare this, then m is coming कितना? m is coming 3 and c is coming 6, है ना? क्लियर है? हाँ सर. स्लोप इज पॉजिटिव Yes, बेटा. स्लोप इज पॉजिटिव. दिस इज, मैंने बताया था ना, इस वाली लाइन का स्लोप इज पॉजिटिव. दिस लाइन विल बी हैविंग द स्लोप नेगेटिव. दिस विल बी स्लोप 0. बताया था ना? ये किस टाइप की लाइन है? ऐसी है ना, स्लोप इज पॉजिटिव ना, 3. क्लियर है कि नहीं? यस सर. सर स्लोप m इज इक्वल टू 3 कैसा है? कंपेयर कराओ ना y इज इक्वल टू mx प्लस c से. तो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 हो रहा है ना यहाँ पे. देखो m के जगह 3 आ रहा है ना? आया ना? यस सर. ठीक है, क्लियर. चलो नोट कर लो. नाउ यू विल प्लॉट ऑल दीज 3 लाइंस. शुरू हो जाओ. अगर आप इसको मिला देंगे these 2 points, you will get line equation. दिख गया कि नहीं दिख गया? सही है. This line is y is equals to minus 6x plus 12. और देखो इसका स्लोप कैसा दिख रहा है. ऐसा स्लोप नेगेटिव होता है ना, हाँ ना? Yes. है ना? ठीक है, क्लियर है. सर बट हाउ विल वी गेट टू नो कि ये पॉइंट हमको x एक्सिस पे प्लॉट करना है, ये पॉइंट हमको y पे प्लॉट करना है? बेटा व्हाट इज 0,12? 0,12 will be on y axis and 2,0 will be on x axis. ये तो पता ही रहेगा. करेक्ट. है ना? हाँ ठीक है. उसको देख के. ठीक है. हाँ. चलो नेक्स्ट, दिस लाइन. सेकंड वाले का कैसे किया वो बताओ. सेकंड वाले का स्लोप कितना आता है? 12 आता है. 12 रेड्यूस कर सकते हैं ना. 12 ट्राई आएगा. कर लेंगे ना 3 से पूरा 4 से 4 नहीं, आएगा. 12 मत कर. लोग क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि x से मल्टीप्लाई 12 और 12 कर देंगे. नहीं, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3, सो इट विल बिकम 4x plus 6. क्लियर है? सही है. 3 से डिवाइड कर दिया ना पूरी इक्वेशन को. हाँ सही. अब क्या होगा? m कितना आ रहा है? m is equals to 4 and c is 4 equals और to 6. c is equal to 6. Now if you put x is equals to 0, you will get y is equals to कितना? 6. And if you put, इसको इधर कर लेना, ठीक है. If you put y is equals to 0, you will get -2/2. x is equals to 3/2 minus 3/2. सही है? क्लियर? Yes, sir. -1.5. ठीक है. अगर if you plot this 0,6 and then -3/2 comma 0, and if connect these 2 points, इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं, you will get the line equation. बताओ प्लॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे m ऐसा है पॉजिटिव. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? बोलो बेटा. यस सर. तो ये नेगेटिव हुआ ना. कहाँ पे नेगेटिव आया? ये वाला स्लोप नेगेटिव नहीं है. ये तो पॉजिटिव है ना बेटा. दिस इज 4 ना. 4 इज Positive पॉजिटिव है. ना. 4 इज पॉजिटिव ना बेटा. हाँ बट वो प्लॉटिंग तो वो नीचे जा रहा है ना. अरे नीचे ऊपर जाने से नहीं होता, उसका शेप दिखता है बस. लाइन का शेप ऐसा है तो पॉजिटिव, ऐसा है स्लोप तो नेगेटिव, ऐसा स्लोप है तो 0. ठीक है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. y is equals to -8x. नीचे ऊपर जाने से मैटर नहीं करता है. लाइन तो कितना भी ऊपर नीचे जा सकती है. लाइन का शेप कैसा है ना, इट इज इंक्लाइंड एट पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल पे, उस पर डिपेंड करेगा. y is equals to -8x plus 16. बताओ y is equals to mx plus c. If you compare this, you will get m is equals to -8. -8. m is equals to
minus 8 and c is equals to 16. 16. ठीक है. Yes. अब इसमें if you put x is equals to 0, उस line equation में if you put x is equals to 0, you will get y is equals to 16. And if you put y is equals to 0, if you put y is equals to 0, then x is coming 2. हाँ या ना? Yes. So you will plot Yes, sir. 0, 16 and 2, 0. ठीक है. सर x is equals to 2 कैसे आया है वो बता सकते हो? बिल्कुल बता देंगे बेटा. If you put y is equals to 0, you will get minus 8x plus 16. So x is equals to 2 यहीं से आ जाएगा, है ना? Okay. तो लाइन इक्वेशन सॉल्व करना सबको आ गया. यू कैन ड्रॉ द लाइन इक्वेशन, आराम से कर लोगे. ठीक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे बताना है, यू हैव टू टेल कि फाइंड द पॉइंट्स. ये क्वेश्चन है. फाइंड द पॉइंट्स where these lines intersect each other. अपना दिमाग लगाना है. होगा क्या, इसके लिए पूरा लाइन ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. सपोज ऐसे आपने बनाया, तो रफली यू कैन ड्रॉ द लाइन. This will be having the negative slope, तो ऐसे जाएगा. This will be having the positive slope, तो कुछ ऐसा जाएगा. लेकिन कट करेगा एक दूसरे को कहीं पे, इस पॉइंट पे कट करेगा. This is 3y is equals to 12x plus 18. This is y is equals to minus 6x plus 12. So they will be having the common point x comma y. इस पॉइंट पे they will intersect. So what you will do, you will just equate these two equations, because at a particular x comma y they will be having the same value. I am writing y is equals to 4x plus 6. Now you can easily solve these two equations. ये solve हो जाएगा ना. Equation 1 minus equation 2, you will get y minus y 0, minus 6x minus 4x, it will become minus 10x. Then plus 12 minus 6, it will become 6. So x is equals to 3 by 5. Now if you put the value of x in any of two equation, you will get y is equals to. Sir. हाँ. बट हम उसे सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? लाइक हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना चाहिए ना. एलिमिनेटिंग मेथड या क्या करना चाहिए था? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना चाहिए. That only. कैसे भी कर सकते हो बेटा, सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो. बट इसका आंसर अलग आ रहा है. हाँ, मुझे x का वैल्यू 0.6 आ रहा है, y का वैल्यू 3.3 आ रहा है. नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. आपका वो गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है. आपके सर मुझे भी सेम आया. Okay. Now we are starting the next topic, that is the ellipse. Ellipse में we will not go up to the mathematics. थ्योरी उतना नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना जितने में हमारा काम चल जाए. तो बेसिकली व्हाट इज द शेप ऑफ एलिप्स, क्या होता है, कुछ आइडिया, एनी आइडिया? शेप ऑफ एलिप्स, दिस वन. ये एलिप्टिकल शेप है कि नहीं बेटा? इज इट एलिप्टिकल शेप? बताओ, इज इट एलिप्टिकल शेप? Yes, sir. Yes, sir. So why ellipse is so much importance? It is having so much importance in physics. क्यों, ऐसा क्यों? Any idea? The solar system Why? It's the shape of orbit. So Earth's orbit is elliptical. Because every shape in the universe is almost elliptical. जैसे अगर if you see the leaves, अगर आप tree leaves देखें, they will be having the shape elliptical shape. उनका shape कैसा रहता है? elliptical होता है. कैसा होता है? It is a elliptical shape. So if something is having any shape, देखो आप randomly आप आसपास कुछ भी उठाओ, natural चीजें, not
हैंडमेड, है ना, नेचुरली जो प्रोड्यूस होती हैं, they will be having in 99% cases they will be having an elliptical shape. अगर आप ट्री लीफ को देखोगे, they are not circular, they are elliptical. होते कि नहीं होते? देखा है? ऑलमोस्ट इलिप्टिकल तो होता ही है ना, लगभग लगभग, क्लियर है कि नहीं? और अगर बात करें सोलर सिस्टम की, सो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स, ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑल आर इन एलिप्टिकल शेप, होते कि नहीं होते? ठीक है. Solar system is an elliptical shape. Yeah, it is elliptical. Sun is one of the foci. So what is ellipse? Ellipse क्या होता है? देखो उसको ड्रॉ करने का तरीका, the procedure to draw the ellipse. NCERT में बहुत सिंपल से लिखा है. It is a very simple definition and it is a very nice definition. कि suppose if you are having a thread, a loose thread, and उसको आपने 2 पॉइंट पे फिक्स कर दिया नेल्स से, and now put a pencil, आप उसको टाइट कर लें. So whatever the thread is allowing to just a minute, if गड़बड़ हो गया. So whatever the shape the thread is allowing to draw you, जैसे आप ऐसे लेके जाओगे, it will draw a shape. This shape will be elliptical. This shape will be elliptical shape. So this shape is because of the constrained length of this thread. हाँ या ना? जितना थ्रेड ने अलाउ किया, that shape is elliptical. समझ में आया कि नहीं? अगर आप if you put a thread between two nails, it is a loose thread. ठीक है? इसमें आपने यहाँ पे पेंसिल, you have put a pencil. अब आप पेंसिल को फ्रीली रोटेट करिए, टाइट करके, है ना, टाइट करके रोटेट करिए, तो जितना शेप this thread will allow you, this shape will become elliptical. कैसा बनेगा? Elliptical. Clear है कि नहीं? Sir, in the NCERT, this part is given in which chapter? In NCERT, sir, this part is given in which chapter? It is given. Mathematics. It is given in mathematics. नहीं, mathematics में तो नहीं दिया है, मुझे अच्छे से याद नहीं है. Mathematics के बुक में दिया है या फिजिक्स के बुक में दिया है, लेकिन किसी में दिया है. बहुत अच्छा सा डेफिनेशन ये दिया हुआ है ना. आई थिंक इट इज़ इन मैथमेटिक्स. 10th में पढ़ा, मैंने कहीं तो पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है आपके 11th-12th में किस पोर्शन में दिया है. लेकिन हाँ, ये NCERT का डेफिनेशन है कि इफ़ यू हैव टू ड्रॉ एन एलिप्स, सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ थ्रेड, यू विल जॉइन द थ्रेड बिटवीन टू नेल्स, एंड द पाथ, द थ्रेड इज अलाउइंग टू ड्रॉ द सर्कल की तरह आप कोशिश करोगे बनाने की, लेकिन सर्कल नहीं बनेगा. आप जैसे भी फिंगर रोटेट करोगे, द थ्रेड अलाउइंग यू अ पाथ विच इज काइंड ऑफ इलिप्टिकल पाथ, वो इलिप्टिकल पाथ ही बनता है. और वो क्यों बना है? बिकॉज थ्रेड इज अलाउइंग यू टू गो ऑन द फिक्स पाथ, उस पाथ पे ही अलाउ कर रहा है जाने के लिए. एंड योर मोशन इज कंस्ट्रेंड बाय द थ्रेड ने आपकी मोशन को कंस्ट्रेंट कर लिया है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. योर मोशन इज कंट्रोल्ड बाय द थ्रेड, ठीक है. एंड दैट शेप इज एलिप्टिकल. उसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वाई ऑल द शेप्स इन द यूनिवर्स आर एलिप्टिकल, ठीक है. ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वाई एलिप्टिकल शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, because in nature most of the shapes are elliptical, orbits are elliptical. And why they are elliptical? Because they are constrained by some factor. In case of planets, they are elliptical, they are following the elliptical path around the sun because they are constrained by some force or they are constrained by time. कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसको कंस्ट्रेंट करते हैं. जैसे यहाँ पे थ्रेड है, वहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन लाने के लिए सम अदर फैक्टर्स आर देयर, लाइक ग्रेविटेशन और टाइम, कुछ भी हो सकता है. इसीलिए एलिप्टिकल शेप का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? लेकिन हमारे सिलेबस में एलिप्टिकल शेप इज बहुत ही कम, कि बस आप देख के बता दो हाँ दिस इज एलिप्टिकल शेप. लेकिन इफ समवन आस्क यू व्हाई एलिप्टिकल शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, क्योंकि आप बता सकते हो कि मोस्ट ऑफ द शेप्स अराउंड अस आर एलिप्टिकल, लाइक ट्री लीव्स. और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारा इफ यू सी द आई, नॉट द आई बॉल, अगर हम सिर्फ आई देखें, ह्यूमन आई, तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखता है ना, ऐसा इस शेप का रहता है ना आई, ऐसा. हाँ या ना? दिस इज एलिप्टिकल और नॉट? Almost elliptical. Okay. I'm not talking about the eyeball. Eyeball is so precise,
इट विल बी हैविंग अ शेप ऑफ स्फेरिकल शेप रहेगा, ठीक है। जो बहुत प्रिसाइज चीज रहती हैं यूनिवर्स में, बहुत प्रिसाइज है ना, दे विल बी सर्कुलर, ठीक है। बाकी यूनिवर्स में चीजें लेंगे वो कुछ एरर के साथ क्रिएट होगा, दे विल बी हैविंग सम इलिप्टिकल शेप, ठीक है। खैर मैं तो बस ये बता रहा था आपको एक थोड़ा सा एक बताने के लिए कि इलिप्टिकल शेप का इंपॉर्टेंस क्या है। आपके सिलेबस में इलिप्स बहुत ही छोटा है, वो इतना ही है कि बस आप देख के बता दो कि हाँ एक इलिप्स होता है, देयर इज इलिप्स, ये इलिप्स होता है, ठीक है। इलिप्स हैज टू फोकस f1 and f2. If this point is 0, 0, this will be B and this will be A. We call B as semi minor axis. साथ साथ दिख रहा है which axis is bigger, A is bigger than B ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? And this is semi major axis. This is y axis, and this is x axis. Whatever the curvature we have drawn, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट इफ यू टेक x, y यहाँ पे रहेगा, इस कर्वेचर के ऊपर ही रहेगा। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये याद करना पड़ता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। If you put the value of x, you will get the value of y. If you put the value of y, you will get the value of x. ठीक है? But elliptical shape, why elliptical shape is very important according to physics? Because most of the shapes are elliptical in shape. Orbits of planet are elliptical in shape. Tree leaves are elliptical in shape. So basically, if you draw the ellipse, why we can draw the ellipse? कैसे draw कर सकते हैं? When the thread is putting a constraint on our motion, है ना? कुछ constraint लगाता है, then you can only draw the ellipse. ठीक है। इसी तरीके से यूनिवर्स में थिंग्स वर्क्स कि वहां पे सम फैक्टर आर देयर विच पुट सम कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन ऑन योर मोशन एंड यू विल ड्रॉ एलिप्टिकल शेप। हमारे सिलेबस में कितना है कि आप बस इक्वेशन को देख लो एंड यू जस्ट टेल दिस इज द एलिप्टिकल शेप। क्लियर है कि नहीं? ये ए और बी क्या है? ए एंड बी आर मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम हाइट ऑफ y फ्रॉम ओरिजिन। This is B and A is maximum length of x जो हो सकता है from origin, ठीक है। बोलो बेटा। Okay, next is circle। Second one is circle। What is circle? Circle क्या होता है? Circle is a special case of ellipse. Suppose if I am drawing this ellipse, अब इसमें क्या हो जाए? इसमें अगर a और b का वैल्यू बराबर हो जाए, क्या हो जाए? ये this is the ellipse. Clear है कि नहीं? Definition is circle is a special case of ellipse. Suppose in this ellipse अगर a और b का वैल्यू बराबर हो जाए तब क्या होगा? ऐसा नहीं हो जाएगा। a and b, value of a and b is equals to r, radius of circle। अगर बराबर कर दे तो इलिप्स कैसा बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। सो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। a is equals to b is equals to r। so you will write x square by r square plus y square by r square is equals to 1। so equation of circle will be x square plus y square is equals to r square। clear है कि नहीं? is it clear? this is the equation of circle। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 10th में?
कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल अच्छा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ लो। व्हाट आर एक्स एंड वाई? कोई भी कोऑर्डिनेट जहां पे येलो येलो बनाया है वहां पे एक्स और वाई का वैल्यू, एंड आर इज द रेडियस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। चलो बना लो सर। नेक्स्ट and the last one topic of geometry is parabola. Parabola, ठीक है। अच्छा, why we are studying these shapes? Circle, parabola, hyperbola. Hyperbola भी आता है, and we will take a little bit information. ज़्यादा ज़रूरत नहीं है because that is required in case of mathematics only. मुझे बस इतना required है कि after checking the equation you just able to tell me that whether it is circle or it is ellipse or parabola. Why we are talking about these shapes? Because these shapes are we are getting these shapes from the universe. पहले इंसान को नहीं पता था कि ये शेप होते हैं, but observation से after observing everything उसने देखा कि यूनिवर्स में these shape exist है ना, these shapes exist. उसके बाद से हमने इसका स्टडी किया एंड मैथमेटिक्स में we got the equation of these shapes. और फिजिक्स में इट इज ओनली रिक्वायर्ड कि आप उसको देख के बता दें, ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। सपोज इफ यू आर गेटिंग सम इक्वेशन, आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट इक्वेशन यू आर एबल टू टेल कि वो पैराबोला को बिलोंग करता है या एलिप्टिकल शेप या सर्कल और कुछ नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज पैराबोला? व्हाट इज पैराबोला? पैराबोला एक शेप होता है, आपने देखा होगा, आपने D2H देखा है? हैव यू सीन द D2H एंटीना? घर पे लगा होता है। यस सर। दैट इज द पैराबोलिक शेप, दैट इज द पैराबोलिक शेप, ठीक है। अब क्या फर्क होता है? पैराबोला ऐसा रहता है दैट D2H एंड द रिफ्लेक्टर ऑफ योर कार बीम, कार का जो होता है ना हेडलैम्प, कार का हेडलैम्प होता है ना, कार का हेडलैम्प, दीज शेप्स आर पैराबोलिक। ये पैराबोलिक शेप होते हैं। क्यों होते हैं? पैराबोला हैज वन फोकस, वन फोकस। अच्छा, सर्किल में क्या होता है? इन केस ऑफ सर्किल, सर्किल का कोई फोकस नहीं होता है, इसका सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर होता है, इसका कोई भी फोकस नहीं होता। सर्किल हैज नो फोकस बट पैराबोला हैज वन फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? अगर कोई भी चीज इन्फिनिटी होता है, क्या है आपके इन केस ऑफ DTH में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स आती हैं सैटेलाइट से एंड दे गेट फोकस, दे गेट फोकस। कहाँ पे होती है फोकस? ऑन द फोकस, इसको फोकस बोलते हैं। यहीं पे आपका एक रिसेप्टर, देयर विल बी अ रिसेप्टर दैट विल रिसीव द सिग्नल। ये सिग्नल रिसीव करता है एंड उसका क्या रहेगा? वो फोकस पे ही रखा जाएगा, इट विल ऑलवेज बी ऑन फोकस। सो व्हाट इट विल डू, इट विल अब्सॉर्ब ऑल द सिग्नल, और फोकस पे लेके वो क्या करेगा? सिग्नल अब्सॉर्ब को फिर मॉड्यूलेशन से चेंज करके इट विल सेंड टू द टेलीविजन, इट विल सेंड टू द टेलीविजन, सेटअप बॉक्स के थ्रू आएगा। सो दिस शेप इज पैराबोलिक। इन केस ऑफ हेडलैम्प व्हाट विल हैपन? यहाँ पे बल्ब जलता है तो यहाँ से लाइट निकलता है और स्ट्रेट जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जैसा शेप है ना? बिल्कुल, कॉनकेव मिरर में ही, ये कॉनकेव मिरर ही होता है, काइंड ऑफ कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर इज पैराबोलिक इन शेप। सर्कल भी होता है लेकिन एबरेशन आता है, जो हम यूज करते हैं वी आर यूजिंग ओनली पैराबोलिक, ठीक है, बिकॉज पैराबोला इज ओनली वन फोकस। वो आप देन हम लोग तब देखेंगे जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? क्या बेटा? कैन यू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन सर प्लीज? But I'm just telling you that these shapes are parabolic. First is D2H, the DTH connection, direct to home, and second is headlamp. These shapes are parabolic in curvature, है ना, parabolic होते हैं। Parabola क्या होता है? This shape is parabolic. ये parabola ऐसा shape होता है। This is the parabolic shape, ऐसा रहता है इस तरीके से, ऐसा। It has one focus. अच्छे से नहीं बना है, ऐसे बना लो। This is a parabolic shape. This is the focus. Only one focus. This is the shape of parabolic shape. ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, इसका इक्वेशन हम आगे देखेंगे। बट
पहले एप्लीकेशन देखेंगे कि दीज शेप वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट वन इज DTH, द डायरेक्ट टू होम, ये तो देखा होगा आपने. एंटीना देखा है रेडियो स्टेशन पे. एट रेडियो स्टेशन कई सारे एंटीना लगे रहते हैं. दे आर पैराबोलिक शेप. ठीक है. कार का हेडलैम्प रिफ्लेक्टर ऑफ कार हेडलैम्प, दैट इज पैराबोलिक शेप. ठीक है. व्हाई वी आर यूजिंग पैराबोला? बिकॉज पैराबोला हैज ओनली वन फोकस. इलिप्स में कितना फोकस था? इलिप्स हैज टू फोकस. इलिप्स में कितना था? इलिप्स हैज टू फोकस, बट पैराबोला हैज वन फोकस. इतना भी रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पैराबोला. तो पैराबोला शेप आपको पता होना चाहिए, ऐसा शेप होता है. ठीक है. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes,